Hello everyone, welcome to you all of day 3 of your coding class online summer camp. In this class, we will learn how to create a form and how to beautify it. So simply you create using HTML this type of form and you can beautify with the help of CSS, and after beautify your form look like this. You can see the difference between two. This is your simple HTML coding, and with the help of CSS you basically design your website or your web page looking cool and beautiful. This is for you. Okay, so in this class we will learn how to create this one. So I already write the code because अगर मैं कोड आपके सामने लिखूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी. So that's why I wrote it the code already and explained you each step by step and what is the procedure and what is the content in this particular form. Okay, so form basically होता क्या है? Whenever you go to the Facebook page or Instagram page or any something login page, तो वहाँ पे आपको बोलते हैं कि yes, you can fill your email ID, you can fill your password and then you hit enter and go to your website. Okay, जब आप Facebook पे लॉगिन करते हो तो अपनी ईमेल आईडी भरते हो, उसके बाद पासवर्ड फिल करते हो एंड देन लॉगिन करते हो. उसी टाइप का फॉर्म आप कैसे बना सकते हो आप घर में अपनी वेबसाइट के लिए, आप खुद कैसे तैयार कर सकते हो उसको, यहाँ पे वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. एंड ईच इज स्टेप बाय स्टेप. Okay, so follow with me. Okay, so first of all, this coding is related to doc type HTML, which means HTML5 coding. Okay, this known as HTML5 coding. And this code, you already know that this is the HTML code in starting of your web page, and this is the head area of your web page, and this is your title of your web page, and this marquee tag will move your text from the right corner to left corner. Okay, and this is the new link command in your HTML coding. Okay, this is your new line in your HTML coding. Remember that this line is very important to beautify your website. So this is link relative style sheet डबल कॉमा में ये है बेटा, एंड ये लिंक कर रहा है कहाँ पे, एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन नाम की फाइल है जिसको एक्सटेंशन है .css. .css मीन कास्केड स्टाइल शीट. ये अलग से हमने फाइल बनाई होगी, वहां पे भी अलग से कोडिंग होगी. लेट मी शो यू वन थिंग. ओके, सो दिस इज द फाइल ऑफ योर CSS. ईच एंड एवरी स्टेप विल बी एक्सप्लेन टू यू. ओके, सो बी पेशेंट एंड वॉच केयरफुली. ओके, so let's move to your HTML file. Okay, so ignore this line. Okay, and now move forward. Okay, head is closed there, body is started there. So that is known as division. What is division? Division is a specific type of area which will be shown on your web page. Okay, will be shown on your web page. Just like that, if I'm selecting this type of area, and this is known as my first division. Okay, as you can see on your screen, the selected type of area will shown as division first. Okay, I hope you understand my point. Let me go to the browser and explain you. Okay, just inspect your web page and how you can create the division out there. Okay, so here's your text now. So this text is known as division. This whole text, जितना भी एरिया इस टेक्स्ट ने घेरा हुआ है, that is known as division. Okay, you can inspect. How to inspect the web page? Just right click on the web page and go to the inspect, and this is your inspection of your web page. This is called box modeling. Just view the mouse pointer. Okay, this is your box modeling. यहाँ पे मैं आपको सारा one by one समझाऊंगा कि कैसे आपका ये वर्क करता है. Okay, let me close it and how I understand now you can the division box. Okay, so back to coding. So division is known as login box. हमने अपने तरफ से कुछ उसको नेम दे दिया है. You can choose, आप अपनी तरह का नेम दे सकते हो. अभी ये डिवीजन क्लास के अंदर जो भी हम कोडिंग लिखेंगे वो सारी आपकी वेब पेज पे शो होगी. ओके, एंड यू कैन इलेबोरेट वेरी इजीली एंड यू कैन डिजाइन इट वेरी इजीली. ओके,
सो डिवीजन क्लास के अंदर हमने जो भी अपनी कोडिंग करनी है वो इसी क्लास के अंदर करनी है. सो फर्स्ट वन इज H1 मस्ट विच मीन्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम जो टाइटल देते हैं वो H1 लेवल का होना चाहिए, जो आपका हेड होगा वो H1 लेवल का होना चाहिए. तो रजिस्टर है उसको हमने H1 नाम का टाइटल दे दिया. और यहाँ से हमारा होता है फॉर्म स्टार्ट. द फॉर्म विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द देयर. ओके, एंड द फर्स्ट पॉइंट इन द फॉर्म इज पैराग्राफ. पैराग्राफ which means जो फर्स्ट आईडी है आपकी, लेट मी शो यू वन थिंग दैट अगेन. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पैराग्राफ. पैराग्राफ मीन्स जो फर्स्ट कॉलम और योर फर्स्ट लाइन ऑन द web page. Okay, so go back to the coding. Yes, so P means the paragraph started, PN means the paragraph ended. Okay, so I'm put it here user ID. You can choose your any name. Okay, you can choose anything. Okay, it's your choice. And what type of user IDs will be? Okay, this is known as input type. Input type means what type of your ID is be there. It's type of text ID. Okay, and what is name? Just name as ID or user ID. It's up to on you. Okay, you can change any name. Okay, and what is placeholder? That is a very important point here. What is placeholder? I wrote it here. Enter ID. Remember, double commas are inserted and closed there. So everything will be stored in the double commas. Okay, so enter ID, which means which will show on the web browser. So just you can see on the web page, this is already here mentions that enter your ID. So whatever you placed in your placeholder will be shown on your web page. Okay, so just like that also we can put the password here, the p paragraph, another paragraph, and it's input type, it's just like password, and name is also password and placeholder. Whatever you want to do that, enter password or anything want to choose it. Okay, you can choose any name. Okay, it depends upon you. You can vary it, you can change it, you can also make your identification. Okay, just take a screenshot of this type of coding and do yourself. Do make changes and code. Okay, practice it. Once it practice it. So next है हमारे पास बटन submit. Submit टाइप का बटन है. That is also kind of a paragraph. Okay, and what type of? It's a submit button. बेटा remember that thing. जब आप टाइप दे रहे हो ना तो वो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा. अगर आपने सबमिट यहाँ पे स्पेस दी है तो उसका मतलब है वो बटन होगा. ओके, अगर आपने पासवर्ड फिल किया है तो वो एक तरह का पासवर्ड फिल मांगेगा. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ समथिंग टू टाइप दैट, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली डॉट्स में जाता है, वो पासवर्ड की करेक्टर फॉर्म में आता है. ओके, अगर मैं यूजर आईडी पे जाता हूँ तो कुछ टाइप करता हूँ तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ रहा है. देखो वो टेक्स्ट की फॉर्म में आपका एंटर हो रहा है. ओके, तो ये आपका हो गया प्लेस होल्डर. आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा. ओके, सो उसके बाद द फर्स्ट वन इज स्टार्टेड. ओके, द लास्ट वन इज स्टार्टेड एंड द फर्स्ट वन इज क्लोज्ड. फॉर्म इज क्लोज नाउ, and after that division is also closed because the division is started there and also the closed one there, and then again the body is started here and closed there, and HTML code from the beginning started there and the code is shut down there. Okay, so that is your basic HTML file. So if you code this one, your web page will be looking like this. Okay, so I mentioned that how you can change this web page to this one. This is very effective and very eye-catchy. Okay, so how you can convert from this coding file to this one, that's I'm showing to you. So listen carefully. Just go to your form or HTML coding. The first link or coding type is there. So remember बेटा कि यहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है किस फाइल का, जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन नाम की फाइल है, जो मैंने ऑलरेडी उस पर कोड लिखा हुआ है. That is code. Okay, now so let me show you the coding where it's reside. Okay, so first go to your folder wherever it's stored. Okay, so look at this one. This one is your HTML file. जो फर्स्ट वाली है ये आपकी HTML फाइल है जिसमें आपने कोडिंग की हुई है सारी HTML की. And the second one you can view that this is .css file, cascade style sheet, जो आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफाई करता है, उसको अच्छा दिखाता है, लुकिंग कूल दिखाता है. ये इसकी सारी कोडिंग जो है वो सेकंड फाइल में है CSS की. और जो मैंने बैकग्राउंड चूज किया हुआ है, जो फोटो आप देख रहे हो वो बैकग्राउंड पे ये वाली फोटो है, वो भी
एक ही फोल्डर में, ये तीनों फाइल्स जो है ना वो एक ही फोल्डर में, तभी ये वर्क कर पा रही हैं. सो रिमेंबर दैट पॉइंट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. योर फोल्डर्स एंड फाइल्स विल बी कंटेन इन द सेम फोल्डर. ओके, so these three files are contained in the same folder. Okay, so let me back to your CSS file. So just click on that file and this is your coding of CSS. So you can view that the first one coding is body and start from the margin 0 and the padding of the page is 0. So what is margin and padding? I can explain you. So go to the web browser. Okay, so web browser and go to the inspect one, right click on that and inspect the, okay, so that is your margin. You can see on the box model, that is your margin. If I change value here, okay, just put it here 50 pixels, okay, and hit enter. So you can see that this is your margin appeared here. Okay, if I place on the above and you can fill it at here and hit enter, you can see the clearly margin, whatever the margin is there, you can feel it. Okay, so how it changes, just refresh it and this coding will be vanished out there. Okay, so this is now vanished, the 50 is gone. Okay, now margin is disappear. So padding क्या होता है, जो आपके टेक्स्ट के साइड में जो आपकी स्पेस होती है, दैट इज नोन एज पैडिंग. ओके, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. जस्ट गो फॉर द कोडिंग, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. लुक अप फॉर द CSS फॉर्म. ओके, सो दिस वन मार्जिन एंड पैडिंग मैंने 0 पे सेट किया है. उसके बाद बैकग्राउंड मैंने ये स्पेस देके इसको URL टाइप किया है. व्हाट इज URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दिस इज द फाइल डेस्टिनेशन ऑफ योर पिक्चर इन द CSS बैकग्राउंड. ओके, इन द फॉर्म ऑफ CSS. जब भी आपने CSS फाइल में कोडिंग करनी है ना, तो याद रखना ये वाला आपका कर्ली ब्रेसेस ऑन होना चाहिए और ये इसके बाद बंद होना चाहिए, और जिसकी कोडिंग आप कर रहे हो वो आपका सेम एज इट इज होना चाहिए. URL क्या है आपका, जो आपकी इमेज का जो नेम है, इमेज का नेम है. ओके, लेट मी शो यू वन थिंग ऑन. Okay, so this is your image name bg3.jpg. okay, and this is in the same folder where your other two files are reside. So go for the coding, just name it here the file name of your URL or your background, or just semicolon put it here. Background size आपका क्या होना चाहिए, cover, which means it cover the whole page of your web page. okay, सो बैकग्राउंड पोजीशन क्या होनी चाहिए, सेंटर. ओके, जो सेंटर में आपके रिलाई करना चाहिए. फ़ॉन्ट फैमिली इज अ टाइप ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली. जो भी आप फ़ॉन्ट यूज़ करते हो ना, इट्स अ टाइप ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली. सो यू कैन गिव एनी ऑफ द फ़ॉन्ट नेम. ओके, आई एम जस्ट गोइंग फॉर द sans serifs. ओके, सो आई एम क्लोजिंग हेयर माई बॉडी. ओके, सो बॉडी जो मेरी CSS की है वो मैंने यहाँ पे अपनी क्लोज कर दी है. एंड देन गो फॉर द डॉट लॉग इन बॉक्स. व्हाट इज डॉट लॉग इन बॉक्स? बेटा ध्यान से देखना, ये डॉट का मीनिंग है कि आप किसी की तरफ इशारा कर रहे हो. गो फॉर द HTML कोडिंग. आप यहाँ पे देखो, आपने डिवीजन को क्या नाम दिया था, ये सारी कोडिंग किसके अंदर हुई है बेटा, डिवीजन के अंदर. ये डिवीजन क्लास के अंदर उसको नाम क्या दिया था आपने, क्लास. उसके बाद आपने नाम क्या दिया था, लॉगिन बॉक्स. जो नाम आपका यहाँ पे सेम एज इट इज आपका नाम CSS फाइल में होना चाहिए. सो वहाँ पे आपने ये सेम नाम लिखा है, पर विद रेफरेंस टू द डॉट. अभी डॉट का क्या मतलब है, ये की तरह काम कर रहा है कि हाँ आप ये वाले लॉगिन बॉक्स को आप फाइंड कीजिए और उस पर ये सारी आप मल्टीप्लाई आप अप्लाई कर दीजिए. विथ का मतलब है कि कितनी उसकी विथ होनी चाहिए. हाइट का मतलब उसकी कितनी पिक्सल्स की हाइट होनी चाहिए. ये ऑल आउट अभी आपको समझने वाला क्या है, बैकग्राउंड. RGBA यहाँ पे मैंने वैल्यू दी है. R का मतलब है रेड मैंने 0 वैल्यू दी है. G का मतलब है ग्रीन मैंने 0 दी है. उसके बाद B का मतलब है ब्लैक, एंड ब्लैक इज ऑल्सो आई पुट है 0. एंड A मीन्स अल्फा. अल्फा मीन्स अगर आप यहाँ पे पूरी 1 वैल्यू को रख दोगे तो उसका मतलब है वो फुल्ली ऑक्यूपाई हो जाएगा. मैं आपको करके बताता हूँ. अभी यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू चेंज की फ्रॉम 1, ओके, एंड सेव इट कर दिया मैंने, जस्ट कंट्रोल एंड एस सेव कर दिया, एंड गो टू योर वेब ब्राउजर एंड रिफ्रेश पेज. तो आप देख सकते हो ये पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है. ये पूरा एरिया जो है ना आपका डिवीजन वाला, ये पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है, क्योंकि आप डिवीजन पे कोडिंग अप्लाई कर रहे हो ना, तो दैट इज वाई ऑक्यूपाई. तो अल्फा चैनल क्या करता है, आपका पूरी कोडिंग को ऑक्यूपाई कर लेता है. तो मैं अभी यहाँ पे 1 अगर 0 होगा तो फुल्ली वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अगर 1 होगा तो फुल्ली वो ऑक्यूपाई हो जाएगा. तो मैं इसका सेंटर पॉइंट वैल्यू रख रहा हूँ 0.5, मतलब फुल्ली ऑक्यूपाई भी ना हो और फुल्ली ट्रांसपेरेंट भी ना हो बैकग्राउंड. ओके, मैं बैकग्राउंड को कर रहा हूँ. सो दैट इज वाई आई सेट द वैल्यू 0.5 एंड सेव इट. सेव करना मत भूलना बेटा. एंड जस्ट गो फॉर द टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलर मैं येलो के लिए जा रहा हूँ. आप कोई भी इस कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो, ब्लू चूज कर सकते हो, रेड चूज कर सकते हो. दैट्स ऑन योर पर्सनैलिटी. ओके, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो. एंड गो फॉर दैट.
टॉप 50%, लेफ्ट 50%, मतलब क्या है, टॉप से मार्जिन कितना होना चाहिए, 50% का होना चाहिए, लेफ्ट से कितना होना चाहिए, इस साइड से 50% होना चाहिए। गो फॉर देयर वेब ब्राउजर, देखो टॉप से कितना होना चाहिए, 50%, यू कैन सी द 50% हेयर एंड 50% हेयर, ओके। एंड जो लेफ्ट और राइट का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 50%, विच मीन्स जो आपका डिवीजन क्लास है वो आपका सेंटर में होना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ओके। सो आपका ये भी 50% यहाँ से भी 50% है, ऊपर से भी 50% है विद रेफरेंस टू, नीचे से भी 50% है। गो फॉर द कोडिंग, यस, गो फॉर द कोडिंग एंड जस्ट नेक्स्ट पोजीशन इज position. What is the position? Absolute. Absolute means the whole page will cover on the background. Okay, so box translate is just a transform, 50% जो आपने यहाँ पे दिया है वो 50% माइनस कर देगा उसको, code it as it I wrote it. Okay, box sizing which means border box होना चाहिए आपका, content box होना चाहिए, जो आपका box आपका visible है ना ये सारा box, what is type is border box, इसको बोलते हैं हम border box. Okay, सो नेक्स्ट वन इज पैडिंग। पैडिंग मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि जो पिक्सल्स आपके साइड में होते हैं, आप राइट क्लिक करते हो, इंस्पेक्ट पे करते हो, तो आप यहाँ पे अपनी पैडिंग भी ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है पैडिंग। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू चेंज की समथिंग लाइक दैट 50 यहाँ पे मैंने फिल कर दी है, हिट एंटर, तो ये आपका शो कर गया, ये देखो ये यहाँ से पैडिंग आपकी आ चुकी है। ओके, आपने अगर यहाँ से 50% ऊपर से 50% किया और एंटर किया तो आपकी पैडिंग ये इंक्रीज हो चुकी है, तो यहाँ से आपकी पैडिंग तो इंक्रीज हो रही है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, पहले आपका जेम्स ऊपर आ रहा था रिवॉल्व होके, अभी वो थोड़ा नीचे आ चुके हैं क्योंकि ऊपर पैडिंग है, मार्जिन है। ओके, जस्ट क्लोज इट एट एंड रिफ्रेश द पेज, सो आई कैन, यस, नाउ इट्स परफेक्टली वेल। सो आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो कोडिंग का और अपने पीसी लैपटॉप पे करो, इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, and then click the photograph and send to your HRT so I can see you if you are doing coding. Thank you for today.